students, today we'll do chapter 2 of class 11 Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. First of all, we must understand what the title means. We, what does we reflect? We reflect power, unity, togetherness. We are not afraid to die if we can all be together. Actually, this is a statement made by a child when he with his family was face to face with death. And these are the words of optimism which helps him and his family to come out of that deadly storm. We'll come to know in the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Alan East. These are some of the expressions in the text are, we have to find out their meaning. Let's discuss owning our seafaring skills. ऑनिंग मीन क्या होता है? शार्पनिंग. ऑन और सी फेयरिंग स्किल क्या होता है? ट्रेवलिंग ऑन द सी विद इंटेलिजेंस. पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन मीन स्मॉल होल्स इन द वास्ट ओशन. वास्ट मीन बिग, इनॉर्मस. ominous silence, very evil silence. A tousled hand mean disordered hand, and mayday calls mean signals for help. In this chapter, we are not afraid to die. This is all about the narrator describes his experience when he with his wife, son and daughter and with two other people, he went on a sea journey. There they faced many problems, but somehow at one particular point of time, it was impossible for them to come out of that storm. But because they were together, because they were hopeful and optimistic, they were able to come out of that deadly storm somehow. The story is about optimism, that how optimism can help one to come out of direst stress. Let's read. In July 1976, the narrator is describing in July 1976 July में his wife Mary, his son Jonathan who was 6 years old, daughter Suzanne who was 7 years old, and I is the narrator, set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. The narrator, his wife Mary, his son Jonathan who was 6 years old only, daughter Suzanne she was 7 years old, and the narrator. Set sail mean क्या होता है? To start a sea voyage, समुद्री यात्रा को शुरू करना. From प्लाईमाउथ इंग्लैंड से उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा शुरू की. क्यों शुरू की? टू डुप्लीकेट द राउंड. डुप्लीकेट हियर मीन टू कॉपी. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, जो सारे संसार की यात्रा की थी लगभग 200 ईयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने. मीन 200 ईयर्स अगो कैप्टन जेम्स कुक मेड अराउंड द वर्ल्ड सी वॉयज, एंड द नरेटर अलॉन्ग विद हिज फैमिली वांटेड टू डू द सेम. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time owning our seafaring skill in British waters. The narrator said that for the longest time, Mary and the narrator. The narrator was a 30-year-old businessman. Businessman था वो, देखो. Had dreamed of sailing. What did the dream? Sailing in the wake of the famous explorer. Famous explorer किसको कहा गया? जेम्स कुक को. In the wake mean to follow. उसको फॉलो करने के लिए उन्होंने सपने देखे थे. And for the past 16 years, और पिछले 16 सालों से कहता है नरेटर कि हमने फर्स्ट पर्सन नरेटिव में चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और नरेटर कहता है कि पिछले 16 सालों में हमने अपना सारा लेजर टाइम, जो हमारा आराम का रिलैक्स करने का टाइम होता है, उसको ब्रिटिश वाटर्स में अपनी सी फेयरिंग स्किल मीन क्या होता है? ट्रेवलिंग बाय सी, और ऑनिंग मीन शार्पनिंग, की समुद्र की यात्रा को शार्प करने में हमने 16 सालों का समय बिताया है. कि हमारा जितना भी लेजर टाइम था वो सारा हमने समुद्र की यात्रा को कैसे अच्छा किया जा सकता है, उसको कैसे शार्प किया जा सकता है, ऐसे निकाला है, ऐसे स्पेंड किया है. तो नरेटर जो है विद हिज वाइफ मैरी, his very small son Jonathan who was 6 years old, daughter Suzanne who was 7 years old, and he himself
started for a sea voyage from Plymouth. The reason behind that was that he wanted to duplicate the round the world voyage done by Captain James Cook 200 years ago. And the narrator is a 30-year-old businessman. He with his family wanted to follow the famous explorer James Cook, and for that purpose they have spent their last 16 years in sharpening their seafaring skills. Next, the narrator describes that if they have to go for seafaring skills, it means they must have some boat or ship as well. So he spent much time in making his own boat. Our boat wave walker. Now the narrator describes his boat. Means the name of the boat is Wave Walker. It was a 23 meter and 30 ton wooden hull. Beauty. 23 मीटर की थी, 30 टन लकड़ी से बनी हुई थी, बहुत ब्यूटीफुल थी. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड इट वाज बिल्ट प्रोफेशनली. कोई मजाक के लिए नहीं बनाई गई थी, प्रोफेशनली तौर पर इसको बनाया गया था. बहुत अच्छे से इसको देखकर समझकर इसको टेस्ट करके बनाया गया था. प्रोफेशनल्स की हेल्प लेकर इसको बनाया गया था. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. और ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसको बना दिया है, उसके साथ साथ उन्होंने स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, कई महीने उसको फिट करने में और रफेस्ट वेदर जो उन्हें मिल सकता था उसमें टेस्ट करने में लगाए. कि ऐसा नहीं था कि जब उनको अपनी राउंड द वर्ल्ड वॉयज शुरू करनी है तभी वेव वॉकर को लेकर निकले हैं. उससे पहले भी उन्होंने बहुत रफेस्ट वेदर जो होता था उसमें उसको टेस्ट भी किया था. मतलब क्या है कि जो 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी थी, जो बोट थी, एंड द सीवर्दीनेस ऑफ द बोट हैड बीन टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर. They were both mentally and physically prepared to undertake their exceptionally long and challenging sea voyage. That's why they prepared that. The first leg of a planned 3-year, 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. The first leg किसको कहा गया यहाँ पर? फर्स्ट राउंड. कि जो उन्होंने क्या प्लान किया था कि दैट दे वुड कंप्लीट देयर राउंड द वर्ल्ड वॉयज इन 3 years. तो उसका जो पहला पार्ट था, पहला राउंड जो 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा उनको तय करनी थी, दैट पास्ड प्लेजेंटली. दे डिडंट फेस मच प्रॉब्लम इन डूइंग 1,05,000 किलोमीटर जर्नी. एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन जो साउथ अफ्रीका में, वहाँ तक जाने में उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई. शुरू का जो भाग था उनका आसानी से निकल गया. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और ईस्ट की ओर जाने से पहले वी टुक ऑन 2 crewmen अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर. और वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे जाने से पहले क्रूमैन कौन होते हैं? जो शिप पर हेल्प करते हैं. उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया. वन वॉज अमेरिकन हुज नेम वॉज लैरी विजिल एंड अनदर वॉज फ्रॉम स्विस हिज नेम वॉज सर हर्ब सिजलर. तो उन 2 लोगों को उन्होंने हायर किया. किस लिए? टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन. किस लिए किया? ताकि ये दोनों जो हैं वर्ल्ड रफेस्ट सीज, जिसको जो साउदर्न इंडियन ओशन था उसकी यात्रा पूरी करने में, उसको टैकल करने में, उसको हैंडल करने में उनको हेल्प कर पाएँ. इसलिए जो नरेटर है उसने 2 क्रूमैन को अपने साथ हायर किया. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. तो शुरू हो गए, पहला पार्ट उनका निकल गया. तो केप टाउन में जब पहुँचे, सेकेंड डे जो था उसको डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. इनकाउंटर मीन क्या होता है? फेस करना. गेल्स मीन क्या होता है? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं. तो व्हेन दे वर एट केप टाउन, इट वाज देयर सेकेंड डे एट देयर, दे स्टार्टेड टू बिगिन फेस टू फेस विद स्ट्रॉन्ग एंड हैवी वेव्स. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली. और ये जो वेव्स थी ये रुकी नहीं, कई हफ्तों तक लगातार चलती रही. Gales didn't worry me. The narrator said that the gales, the strong winds didn't worry the narrator, but the size of the waves was alarming. बट जो साइज़ था वेव्स का, जो वेव्स की जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने वाली थी. अप टू 15 मीटर्स. और कितनी जो वेव्स थी वो लगभग 15 मीटर ऊंची थी. एज हाई एज आर मेन मास्ट. और जैसा हमारा मेन मास्ट जो था, जो मास्ट क्या होता है? टॉल, इट्स अ टॉल पोल इन अ बोट.
दैट सपोर्ट्स द सेल। तो मतलब 15 मीटर जितना उनका मेन मास था, मतलब जो लहरों का जो साइज़ था, जब वो लहरें ऊपर उठ रही थी तो बहुत ज़्यादा थी। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. December 25, तो उन्होंने जैसे जुलाई 1976 में ये शुरू किया है, तो दिसंबर 25 मतलब जुलाई से लेकर अब दिसंबर की बात हो रही है। फाउंड अस 3005 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, वो अब वहाँ से 3,500 किलोमीटर केप टाउन में आ गए थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस मीन क्या होता है, वेरी बैड। Although the weather was very bad, very critical, we had a wonderful holiday complete with the Christmas tree. As it was December 25, so they had a wonderful holiday with the Christmas tree. Mean they were celebrating Christmas. Now New Year's Day saw no improvement. New Year's Day mean 1st January. तो 1976 को उन्होंने चलना शुरू किया था। 1977 1 जुलाई न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। तो नए साल के दिन मतलब 1 जनवरी को वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आया, बिल्कुल वैसे ही था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, बट वी आर्ग्यूड दैट मीन द मेंबर्स ऑफ ऑन द शिप दे रीजन दे आर्ग्यूड दैट इट वुड चेंज सून, कि मौसम में सुधार नहीं है, बट उन्होंने एक्सपेक्ट किया जल्दी ही चेंज होगा। एंड इट डिड चेंज for the worse. As they had reasoned, they had argued that there would be change in the weather. No doubt the weather changed, but for the worse. कि सुधार नहीं हुआ उसमें कुछ भी, बट जो वेदर था वो पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic. At dawn mean क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग। on the early morning of January 2, जनवरी 2 की सुबह सुबह the waves were gigantic. जो वेव्स थी वो जाइगेंटिक मीन क्या होता है, ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वॉज स्टिल मेकिंग 8 knots। अभी भी हम जो थे सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप। जिप क्या होता है, अ स्मॉल सेल, हम एक छोटी सी सेल के साथ ही सेलिंग कर रहे थे। एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 knots। नोट क्या होता है, सी मीटर होते हैं, जो समुद्री दूरी को मापने के लिए होता है उनको कहते हैं नोट्स। अभी भी हम 8 नोट ही बना पाए थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. तो कह रहे कि जैसे शिप आगे बढ़ता, हर जो टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जो हर एक लहर थी उसका जो टॉप पार्ट था उसे हमें क्या दिखाई दे रहा था, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज, हमें अपनी तरफ रोलिंग टूवर्ड्स। रोलिंग मीन क्या होता है, लुढ़कते हुए, ऐसा लग रहा था जैसे लुढ़कते हुए एक बहुत इनॉर्मस, एक बहुत ह्यूज जो सी है वो हमारी ओर आ रहा। मतलब इस तरह से लहरों का असर जो इस तरह से था कि ऐसा लग रहा था जैसे लहरें वापस शिप पर ही आने वाली हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। एंड स्क्रीमिंग, जो हॉलिंग, जो मतलब चिल्लाने की जो आवाज़ थी, हवा जो थी इतनी तेज चल रही थी, वैसे हवा चिल्लाती नहीं है। आप देखिए पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, स्क्रीमिंग ऑफ द विंड। इट मीन्स क्या है, ये शो कर रहा है, स्क्रीमिंग वर्ड क्यों शो किया गया है कि भाई हवा की जो आवाज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए स्क्रीमिंग वर्ड यूज़ किया। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो वो बार बार जो वो हवा के साथ साथ जो पानी आ रहा था वो उसकी जो तेज़ आवाज़ थी वो कानों को बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जी। तो जैसे बहुत तेज़ समुद्र में लहरें उठ गई थी, तो हमने अपनी बोट को स्लो करने के लिए जो स्टॉर्म जिप था हमने उसको नीचे डाल दिया। एंड लेस्ड हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और जो हमारा स्टर्न था, स्टर्न क्या होता है, हिंड पार्ट ऑफ द बोट, जो शिप का पिछला भाग होता है उसको कहते हैं। एंड लेस्ड हैवी मूरिंग रोप, और जो बांधने वाली रस्सियाँ होती हैं हमने वो उसके आसपास बांधी ताकि वो ज़्यादा ना हिले। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, फिर हमने क्या किया, हर एक चीज़ को डबल लेस्ट कर दिया, डबल बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। लाइफ राफ्ट क्या होता है, जो कि ये सारे के सारे क्या हैं, जो लाइफ सेविंग होते हैं उनको कहते हैं लाइफ मीन आप समझ सकते हैं कि जो लाइफ को बचाने के लिए जिन जिन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जैसे लाइफ बोट आप उनको कह सकते हैं। वी वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट। लाइफ राफ्ट मीन क्या होता है, लाइफ बोट जो होते हैं उनकी ओर गए। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, जो लाइफ लाइन जो थी, रोप्स जो थी, मतलब लाइफ लाइन क्या होती हैं, द रोप्स दैट हेल्प्स टू सेव लाइफ्स, उनको यूज़ किया। डोंट मीन पुट ऑन, पहना। ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन्स क्या होते हैं, एक तरह का मतलब कवर होता है जिसके ऊपर ऑयल लगा होता है जो डूबने से बचाता है। एंड लाइफ जैकेट्स, और ऐसी जैकेट जो डूबने से बचाए, हमने वो पहनी। एंड वी वेटेड, अब क्या होगा ये इंतज़ार किया।
The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. तो इम्पेंडिंग मीन क्या होता है? जो आने वाला है, आने वाला जो डिजास्टर था, जो नाश था, उसका जो फर्स्ट इंडिकेशन था वो लगभग शाम को 6 बजे दिखाई दिया। अभी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है वो हमें 6 बजे पता चला। विद एन ओमिनस साइलेंस, एकदम से बहुत चुप्पी छा गई, मतलब बिल्कुल शांति। कहाँ तो लहरें उठ रही थी, बहुत शोर कर रही थी, कानों को चुभ रही थी, और कहाँ से एकदम से शांति आ गई। जैसे कहते हैं ना कि तूफ़ान के आने से पहले वाली शांति, कि जितनी शांति ज़्यादा होती है तूफ़ान उतना ही भारी होता है। तो सेम ऐसा चल रहा था। द विंड ड्रॉप्ड, हवा कम हो गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और एकदम से आसमान जो अब तक ठीक ठाक था बिल्कुल गहरा हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रॉ, फिर एकदम से गरजने की आवाज़ आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑफ एट द शिप, और एक बहुत बड़ा सा बादल जो है वो शिप के ऊपर आ गया। टावर्ड ऑफ मीन क्या होता है? केम ओवर, एक बड़ा सा बादल जो था वो हमारी बोट के ऊपर मंडराने लगा। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। डर भी था कि इतने भारी जो था क्लाउड कैसे आ गया, अब क्या होगा। तो डर के हमारे मुझे एहसास हुआ। नरेटर कहता है, आई रेफर्स टू द नरेटर, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, ही फेल्ट दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट इट वॉज अ वेव विच द नरेटर हैड नेवर सीन। तो एक ये कोई बादल नहीं था, बल्कि एक ऐसी लहर थी जैसी कभी नरेटर ने देखी नहीं थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, जो वेव थी वो बिल्कुल वर्टिकल थी, बिल्कुल सीधी थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जितनी वेव्स होती हैं उनसे भी डबल हाइट में, उनसे भी बहुत ऊंची ऊंची थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बहुत ज़ोर से ये आवाज़ भी, टूटने की आवाज़ भी कर रही थी। द रोर इंक्रीज टू थंडर, जो आवाज़ थी अब तो आवाज़ थी वो थंडर, जैसे कुछ गरज रहा हो, ऐसी आवाज़ होने लगी। एज द स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही हमारा जो स्टर्न था, जो पिछला भाग था, वो लहर की ओर मुड़ा। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, कुछ देर के लिए तो हमें लगा कि जैसे हम उन लहरों के ऊपर से ही सवारी कर जाएंगे। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन फिर एकदम से ट्रेमेंडस, एक बहुत भयानक विस्फोट ने पूरी डेक को ही हिला दिया। A torrent of green and white water broke over the ship. A torrent जो मतलब टोरेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज़ पानी जो था, ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, पानी जो था वो शिप के ऊपर आ गया। जो नीचे से पानी था वो सारा शिप में आ गया। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, नरेटर कहते हैं उसका सिर जो है वो व्हील से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे ये ध्यान था कि मैं ऊपर ही ऊपर जो है फ्लाई कर रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मैं वेव्स के नीचे जो है वो सिंक होने वाला हूँ, डूबने वाला हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अप्रोचिंग मीन क्या होता है? कमिंग, कि मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई मेरी डेथ होने वाली, ऐसा हाल हो गया था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और ऐसी हालत हो गई थी कि मैं बेहोश होने वाला था लगभग। तो आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, जैसा कि नरेटर ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसका सिर जो था एकदम से पॉप्ड आउट मीन क्या होता है? मूव्ड आउट सडनली, एकदम से पानी से बाहर निकल गया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और मैं देख रहा था कि मुझसे कुछ दूर ही, कैप्साइजिंग मीन क्या होता है? सिंकिंग। जो वेव वॉकर जो थी वो वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, जो हमारी बोट थी वो डूबने ही वाली थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, जो मास्ट थे जो बिल्कुल सीधे होते हैं वो लगभग हॉरिजेंटल हो गए थे, मतलब सीधे हो गए थे। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, फिर एक जोर की हवा ने उसे एकदम से दूर फेंक दिया। किसको? वेव वॉकर को। हर्ड मीन क्या होता है? थ्रो अवे, दूर फेंक दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और मेरी जो लाइफ लाइन जो थी वो एकदम से सीधी हो गई। जो लाइफ लाइन मैंने पहन रखी थी वो बिल्कुल सीधी हो गई। आई ग्रेप्ड द गार्ड रेल्स, जो गार्ड रेल्स थी मैंने उनको जोर से पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूव, और मैं जो वेव वॉकर का जो मेन बूव था, जो मेन बार था, मैं वहाँ आ गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और जो एज ए रिजल्ट जो वेव्स थी वो मुझे जैसे कोई रैग डॉल, जो किसी कपड़े की बनी हुई गुड़िया को इधर उधर फेंक देते हैं, मतलब जैसे कोई कपड़े की गुड़िया होती है, उसको अगर आप पानी जोर से उसके ऊपर मारोगे तो वो इधर उधर गिरनी शुरू हो जाएगी। तो जो लहरें थी, जो ताकतवर लहरें थी, वो मुझे भी एक कपड़े की डोल की तरह इधर उधर घुमा रही थी।
माई लेफ्ट रिब्स करेक्ट, जो मेरी पसलियाँ थी वो क्रैक हो गई. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, सारा मुंह खून से भर गया. एंड ब्रोकन टीथ, तो दांत भी टूट गए थे, तो मुंह जो था मेरा खून से भर गया. Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. तो जैसे तैसे करके मैं पहिए तक पहुंचा. lined up the stern for the next wave, अगली वेव तक आने तक मैंने स्टर्न को पकड़े रखा और लटके रहा. water water everywhere, in the ship there was water everywhere. पानी 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 भर गया. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. I could feel that the ship had water below. कह रहे कि मुझे ये एहसास था कि शिप के नीचे पानी पानी भर गया है. बट आई डेयर नॉट अबेंडन. अबेंडन मीन क्या होता है? टू लीव. लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि व्हील को छोड़ दूँ ये देखने के लिए क्या कुछ है, क्योंकि अगर वो उसको छोड़ देता है तो डेफिनेटली ही वुड ड्रोन्ड अवे, वो डूब जाएगा. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन. तो एकदम से जो फ्रंट हैच था, हैच मीन क्या होता है? द डोर इन द डेक ऑफ अ शिप. शिप के पिछले भाग का जो डोर होता है उसको कहते हैं डेक, हैच कहते हैं. फ्रंट वॉज थ्रोन ओपन, एकदम से खुला और मैरी आ गई. वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, शी क्राइड एंड सैड दैट दे वर सिंकिंग. कहते कि हम डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मेस्ड, जो डेक हैं वो टूट गए हैं. वी आर फुल ऑफ वाटर. वी आर फुल ऑफ वाटर मीन क्या है? द शिप इज़ फुल ऑफ वाटर. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. तो क्योंकि उसने व्हील को पकड़े हुए था, अगर व्हील को छोड़ देता तो कुछ भी गलत हो सकता था. तो जोर से चिल्लाता है, कहता है कि व्हील को पकड़ो. एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. स्क्रैम्बल्ड हेयर मीन स्ट्रगल. जैसे ही वो डोर तक पहुंचने की कोशिश करता है तब चिल्लाता है कि व्हील को पकड़ो. लैरी एंड हर्ब वर, ये क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है कि भाई उनके एफर्ट्स क्या थे. व्हेन द शिप वॉज फुल ऑफ वाटर, व्हाट वर देयर एफर्ट्स टू ओवरकम दैट सिचुएशन. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. लैरी एंड हर्ब, हु वर दे? दे वर द crewmen who were hired by the narrator. They were pumping like madmen. जैसे पागल हो, पंपिंग करना, पंप से पंप चलाना, जैसे पानी निकालते हैं इस तरह से पंप लगा चला रहे थे, बिल्कुल पागलों की तरह. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो लकड़ी के तख्ते थे वो इधर उधर बिखर गए थे. द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ज इनवर्ड, और जो सारा का सारा राइट साइड थी, स्टारबोर्ड मीन क्या होता है? राइट साइड जो थी बर्ज हो गई थी, मीन वो फूल गई थी. स्वेलो, उसमें जैसे स्वेलिंग होती है अंदर के अंदर कि जैसे वो होता है तख्ता होता है, लकड़ी का पार्ट होता है, जैसे उसमें पानी जाता है तो वो फूल जाता है, वो ऐसे ही फूल गया. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर. एवरीथिंग दैट वॉज देयर इन द शिप, क्लोथ्स, क्रॉकरी, देयर चार्ट्स, देयर टिन्स एंड टॉयज, दे वर स्लोशिंग अबाउट इन. स्लोशिंग मीन क्या होता है? मूविंग हियर एंड देयर. वो इधर उधर, मतलब पूरे शोर के साथ इधर उधर बह रहे थे. I half swam, half crawled. The narrator said that वो कुछ देर उसने स्विमिंग की, कुछ देर वो थोड़ा सा क्राउलिंग की into the children's cabin. Somehow he was able to reach in the children's cabin. और बच्चों से पूछता, oh, are you all right? He asked his children if they were all right. ठीक हो तुम? I asked. मैंने पूछा. narrator कहता है yes. They replied yes. They answered from an upper bunk. जो अपर बंक था, जो स्लीपिंग बर्थ था, वहाँ से बच्चों ने जवाब दिया yes, they were fine. But my head hurts a bit, said Sue. Sue? Who is Sue? Sue is Suzanne, जो 7 साल की लड़की है. वो कहती है but my head hurts a bit. अपने फादर को कहती है लेकिन मेरे सिर में थोड़ी चोट लग गई है. Pointing to a big bump above her eyes. Big bump मीन क्या होता है? जो स्वेलिंग होती है, कि उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा सा बम्प हो गया था, स्वेलिंग हो गई थी, उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि मेरे सिर में थोड़ी चोट लग गई है. But the narrator said that I had no time to worry about bumped head because the situation was very critical. The ship was filled with water, so he said that he didn't have any time to worry about bumped head. कि भाई सिर में अगर बम्प हो गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, तो उसके पास टाइम नहीं है, because the outside it was very disastrous situation. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. तो finding a hammer, they found a hammer. स्क्रूज इन कैनवास, उनको मिला, मोटा कपड़ा मिला. आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक. द नरेटर वेंट बैक टू द डेक एंड ही स्ट्रगल्ड वेरी मच विद द स्टार बोर्ड साइज बेस्ट ओपन. बेस्ट ओपन मीन स्मैश्ड. जो स्टार बोर्ड था, जो राइट साइड थी, वो एकदम से खुली. वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस. कहते हैं कि जैसे ही मतलब जितनी भी लहरें आती, हर लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. तो नरेटर कहता है कि अगर हमने जो मतलब जो गैप होल हो गए हैं, जहाँ से पानी नीचे से एंट्री कर रहा है, अगर हमने उनको बंद नहीं किया तो डेफिनेटली वी विल सिंक. हम डेफिनेटली हम डूब जाएंगे. समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास.
Somehow the narrator managed to stretch the rough clothes. मतलब इस तरह से जो शिप के नीचे से भी पानी अंदर आ रहा था उसको कवर करने के लिए उन्होंने कैनवास मैनेज किया एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स. जो गेपिंग होल्स है मतलब जिनमें से पानी अंदर एंट्री कर रहा था उनको भी उन्होंने कवर किया. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो. कुछ पानी जो था नीचे से आ रहा था बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. लेकिन बहुत सारा पानी जो था वो साइड से मूव हो रहा था, हटाया जा रहा था उसको. तो इतना ही प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई पानी अंदर आ रहा था और उसको पानी को निकालने की कोशिश कर रहे थे. दिस वॉज नॉट द प्रॉब्लम. मोर प्रॉब्लम अरोज when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. सिर्फ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी. अब तक तो वो पानी को निकाल रहे थे, जितना आ रहा था उसको कोशिश कर रहे थे साथ साथ निकालने की, लेकिन प्रॉब्लम्स उनके लिए और ज़्यादा बढ़ गई. कब बढ़ गई? जब हैंड पम्प जो थे वो ब्लॉक हो गए. जो केबिन में जो डेब्रिस मीन क्या होता है? जो कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, जो इधर उधर मतलब सारी चीज़ें इधर उधर बिखरने लगी थी. तो कुछ चीज़ें जो थी हैंड पम्प था उसमें डेफिनेटली वो चली गई होंगी, जिससे उसने काम करना बंद कर दिया. कैबिन के आसपास ये जो गार्बेज जो कूड़ा करकट था वो उसमें घुस गया और उसने काम करना बंद कर दिया. और इलेक्ट्रिक पंप जो था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया, वो ख़राब हो गया. द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली. तो अब पानी वो निकाल नहीं पा रहे थे, पानी आ रहा था, अंदर आ रहा था, तो वाटर लेवल जो था वो मतलब भयानक रूप से ऊपर बढ़ गया. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड. तो जो डेक था वहाँ पर नैरेटर ने देखा कि जो रेंज्ड मीन क्या होता है? ट्विस्टेड. जो मुड़ा हुआ ओवरबोर्ड था वहाँ पर उनके पास 2 स्पेयर हैंड पम्प्स रखे थे. अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल द जिप द डिंगीज एंड द मेन एंकर. और उसके साथ साथ जो फोरस्टे क्या होता है? फ्रंट बिग सेल होती है. जो जिप थी वो जो डिंगीज होती हैं छोटी छोटी कश्तियाँ, और मेन एंकर मतलब कुछ चीज़ें उन्हें वहाँ पर मिल गई. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. नेटर कहता है फिर मुझे याद है, आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. जो चार्ट रूम फ्लोर था वहाँ मुझे याद आया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप और भी था, मीन्स स्पेयर था. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप. नैरेटर ने उसे बाहर वाले पाइप से कनेक्ट किया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट इट वॉज वर्किंग. वो ख़राब नहीं था, वो ठीक ठाक था. ये देखकर उसे बड़ी खुशी हुई. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पम्पिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो. जो रात थी वो एंडलेसली मीन लगे रहे वो बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पम्पिंग. बहुत ठंड और लगातार पंपिंग कर रहे थे, स्टीयर कर रहे थे, वर्किंग द रेडियो, रेडियो से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. मतलब सारी रात ऐसे लगे रहे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स. मेडे कॉल्स मीन क्या होता है? द सिग्नल्स फॉर हेल्प. द सिग्नल्स दे वर मेकिंग फॉर हेल्प, दे डिडंट गेट एनी रिप्लाइज टू देम. वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट देयर कांटेक्ट वाज नॉट डन सो, विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. और कहता है नैरेटर की हैरानी की बात भी नहीं थी. वर्ल्ड के इस रिमोट कॉर्नर में इतनी दूर अगर किसी के साथ हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता तो ये हैरानी की बात नहीं थी. स्यूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली. तो जैसे कि स्यू के हैड पर बम्प हो गए थे तो उसका सिर जो था वो बहुत ज़्यादा स्वेलो हो गई थी, सूजन आ गई थी उसमें. शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज. उसकी मतलब जो सूजने की वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी. एंड नाउ शी सोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म. शी ऑल्सो सोड द डीप कट विच वॉज ऑन हर आर्म टू हर पेरेंट्स. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल. व्हेन आई आस्क्ड When the narrator asked Suzanne, why didn't she mention her injuries? भाई पहले क्यों नहीं बताया, हम पहले उसको इलाज दे देते. तो उसने कहा, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. It means that she told her father that she didn't want to worry him when he was trying to save them all. कि उसके फादर बाहर उसे उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस टाइम ऐसे मुश्किल टाइम में जब वो इतनी कोशिश कर रहे थे वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी.